Okay, hi. So we are meeting after so many days, almost a week. We had our last lecture on equity security, and we are looking into type of securities. And yeah, we had a debt securities and equity securities completed in our last sessions. And today we are going to look into the derivatives securities. Uh, I think you all can see my screen. Okay, so in this chapter, in this session, we are going to look into what do you mean by the derivative contracts, then what are the uses, key terms, and some of the types. Okay, we are not going to see in detail about the derivatives. Okay, so it's just an overview for the derivative contract or derivative securities because it's just a type of your first unit, I think. Yeah, it's your first unit. So let me begin with the what do you mean by the derivative? Okay, so uh, actually, derivative contract is a security type which is actually based on the sum of the sum or any I can say any asset, any underlying asset. Okay, so if you go through the definitions, you can see the derivatives are financial contracts whose value is linked to the value of an underlying asset. So here the underlying asset can be anything. It could be equity, it could be a commodity, means gold, take a crude oil, or it could be any event, you know, any event as well. It's also underlying asset. So these are some of the complex financial instruments that are used for various purposes for additional market assets or markets or hedging purpose as well. Okay, to minimize your risk for of the portfolio. So we have type here for the derivatives as well. But before this, I would like to tell you that derivative contracts are started from 1970s actually. Okay, 1970 from 1970s there is new derivative contract or this new financial security has been instituted. And then we have types over here. If you see, it's on your screen. So what are the types of the derivative contract? The first one is a forward contract. Is an over the counter derivative contract. Means what do you mean by the over the counter? It deal on the table with the dealer and brokers and the two parties. We cannot sell or we do not buy or sell forward contract on the exchange. Means on the exchange we did not buy or sell the forward contract. In the forward contract, two parties agree that one party, means the buyer, will purchase an underlying asset from the other party, the seller, at a later date at a fixed price they agree upon when the contract is signed. Means just take an example. If I and Abhishek has a contract over the Abhishek has the wheat in his farm, means उसके फार्म में अब गेहूं उसने लगाए हैं और अब मैं उसे बाय करने वाला हूं। ओके, सो तीन अभी तक वो आया नहीं है, सिर्फ उसने लगाए हैं और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि 3 महीने बाद मैं उसका गेहूं 10 रुपए किलो से खरीदूंगा। ओके, 10 रुपए किलो से मैं खरीदूंगा, जितना भी गेहूं हो जाए उतना। सो ये फॉरवर्ड चीज मतलब आगे की बात है, फॉरवर्ड की बात है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्राइस फिक्स कर दी 10 रुपए पर किलो। उसके खेत में जितना भी आएगा, फिर वो 1 टन आ जाए, 2 टन आ जाए, आधा टन आ जाए, मुझे उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, जितना भी आएगा मैं खरीदूंगा। ओके, 10 रुपए किलो से। अब ये तो हो गई फिक्स प्राइस। अगर जब वो डेरिवेटिव वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा, उसकी डेट आएगी, तब शायद ऐसा हो सकता है कि गेहूं के दाम गिर जाए।
8 रुपए किलो ही मार्केट में चल रहा है, पर अभिषेक को मैं 10 रुपए किलो दूंगा। इसका मतलब कौन फायदे में है अभी? यस अभिषेक। मी। या पर अगर समझ लो कि 15 रुपए किलो गेहूं का रेट चल रहा है, प्राइस मार्केट में, जब मैंने मैच्योरिटी आ गई, तो उस पर मैं खुद फायदे में रहूंगा, क्योंकि मुझे 5 रुपए किलो कम से मुझे गेहूं मिल रहा है। तो ये यही इसका फायदा होता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, जज करना पड़ता है कि आप कौन सा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लें। ऐसी कौन सी चीज है कि जो आगे जाकर, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ ओनियन एज वेल। ओके, प्याज का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इस बारे में, या फिर ब्लैक पेपर का एग्जांपल ले सकते हैं। ये काफी इनकी प्राइसेस आगे ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपको ब्लैक पेपर या अगर आप न्यूज आर्टिकल्स देखो, तो आपको उसमें बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आएगी। आप एक बार बिजनेस लाइन की साइट पे या फिर जस्ट गूगल कर लो ब्लैक पेपर की प्राइजेस में, या फिर उसकी किस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत आम बात है। ऐसा मत समझो कि ये होते नहीं है, गांव गांव में होते हैं। गांव गांव में होते हैं कि जो व्यापारी होते हैं, आड़तदार बोलते हैं उसको, पता है ना आड़त? सुना है क्या नाम? यस सर। या तो वो लोग करते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरा खुद एक दोस्त है, औरंगाबाद का ही है, कि वो कुछ आम के किसानों, आम के जो जिनके बाग है, उनके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। वो नवंबर या दिसंबर में ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं इस रेट से आपके आम खरीदूंगा। तो ये बहुत आम बात है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ इंडिया में, या फिर मेनली तो मैं कहूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर के इसमें तो ये बहुत आम बात है। देन सेकंड वन इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिमिलर है। इसमें कोई ये नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं है, वही प्रॉपर्टीज है, सेम है। बायर और सेलर पहले ही बैठकर प्राइस फिक्स करेंगे, और मैच्योरिटी पर डिलीवरी होगी और प्राइस दी जाएगी। पर यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होता है। अब जैसे मैंने कहा कि गेहूं का ले लिया मैंने अभिषेक के साथ, कि जितना गेहूं हो उतना, उसके खेत में जितना हो उतना मुझे लेना पड़ेगा। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉट फिक्स होता है, मतलब 1000 ही बैग्स लूंगा, समझे, 1000 ही लूंगा, या फिर 1 टन ही लूंगा, 2 टन ही, मतलब स्टैंडर्ड लॉट। एंड एज वेल, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेचे जाते हैं एक्सचेंज पे। फ्यूचर वाले एक्सचेंज पे बेचे जाते हैं, फॉरवर्ड नहीं बेचे जाते। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज एंड इट्स क्रिएटेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फ्यूचर एक्सचेंज। अब इनको बनाता भी कौन है? इनको बनाता भी एक्सचेंज है, मतलब एनएससी ले लीजिए, बीएससी ले लीजिए, यही इनको बनाएगा और यही इन्हें बेचेगा भी। इतना याद रखिए, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप है। तीसरा है ऑप्शंस में। अब यहाँ पर ऑप्शंस, तो ऑप्शन क्यों क्या कहा जाता है इसमें? अब जस्ट एग्जांपल, तुमने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर लिया, उसमें ऑब्लिगेशन है, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको पूरी प्राइस देनी ही चाहिए, देनी ही पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ऑप्शन में अलग होता है। ऑप्शन में यू हैव ऑप्शन टू इलिमिनेट फ्रॉम द ट्रेड, मुझे बाहर निकल जाओ, ठीक है, बाहर निकल जाओ आप उस ट्रेड से, या आपको ऑप्शन होता है, इसलिए इसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। पर यहाँ पर क्या होगा, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर बाहर आप चले गए, तो आपको प्रीमियम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जाता है तो आपको जो कीमत देनी पड़ती है उसे कहते हैं प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम। और वो 10% होता है, 10 के आसपास, मेरे ख्याल से 10 ही है, आप गूगल कर लो एक बार, पर 10% ही है, ठीक है। तो मतलब अगर 100 रुपए का ट्रेड है, पूरी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 रुपए का है, तो मुझे पहले 10 रुपए देने पड़ेंगे उसे, सेलर को, कि भाई ये लो मेरा 10, वो बोलते ना, आप लोगों ने एडवांस सुना ही होगा, आप जब कोई खरीदारी करते हो, जमीन जमीन की ले लो या कुछ भी खरीदारी, तो आप पहले उसको एडवांस दे देते हो, कुछ अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट, ओके। तो ये, अब मैं खुद यहाँ पर एक लैंड की डील करने वाला हूँ, मैं खुद खरीदने वाला हूँ, तो मेरी कल है मीटिंग उनके साथ, तो मैं उनको कुछ लाख रुपए देने वाला हूँ एडवांस के रूप में, प्रीमियम के रूप में, 10% अमाउंट में उन्हें देने वाला हूँ। तो
ऐसे ही ऑप्शन में आप 10% उनको देंगे। अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट कर दिया, उसको बोल दिया कि नहीं भाई मुझे आप नहीं चाहिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो वह 10 रुपए आपको छोड़ने पड़ेंगे, वो 10% आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर आप रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में मेच्योरिटी तक, तो आप जो आपके बाकी है 90% रुपए, तो वो आप उसको दे देंगे, 90% अमाउंट आप उसको दे दोगे, और उसके बाद आप वो जो है माल की डिलीवरी आप लो लोगे। ठीक है, तो ये है ऑप्शन। और सबसे आखिर में होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी ओवर द काउंटर ही जाता है। ठीक है, ये भी एक्सचेंज पे नहीं जाता, ये ओवर द काउंटर जाता है। फॉरवर्ड और स्वैप ओवर द काउंटर पे जाएंगे, मतलब टू पार्टीज बैठेंगे ब्रोकर के ऑफिस में और इसको करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें हम सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, मतलब दो चीजें। अब यहाँ पर आप करेंसी स्वैप पकड़ सकते हो, बड़ा अच्छा उसका एग्जांपल होता है करेंसी स्वैप का, कि मेरे पास अभी पाउंड्स है और मुझे डॉलर्स चाहिए किसी और से। आरती के पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, मुझे डॉलर चाहिए, और मेरे पास पाउंड है, तो मैं और आरती स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि वो मुझे कहेगी मैं तुमको $100 दूंगी, तुम मुझे 110 पाउंड देना, मतलब ज्यादा देना क्योंकि मुझे जरूरत है। ठीक है, सेम उल्टा भी हो सकता है, उसको भी जरूरत हो सकती है, वो भी मुझसे मांग सकती है। तो यह हम करेंगे स्वैप, मतलब क्या, यहाँ का उधर वहां का इधर। ठीक है, तो इसे भी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये बहुत अलग अलग तरह के भी होते हैं, करेंसी के होते हैं। उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट्स की भी होते हैं कि फिक्स इंटरेस्ट से आप वेरिएबल इंटरेस्ट में चले जाओ, या फिर आप कैश फ्लोज भी हो सकते हैं किसी कंपनी का, अगर यहाँ से पैसा आने वाला है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है स्वैप। ओके, तो ये मेन 4 टाइप है डेरिवेटिव्स के, इतना याद रखिए, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के ये मेन 4 टाइप है। और अब इन्हीं टाइप को आप अलग अलग जगहों पे अप्लाई करोगे। ठीक है, क्रूड ऑयल पे ले लो, क्रूड ऑयल पे ले लो, कमोडिटी पे ले लो, या मतलब गोल्ड पे ले लो, इक्विटी डेरिवेटिव्स पे होते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स भी होते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा और सर्च करो खुद से भी कि आप कौन कौन से डेरिवेटिव्स है, तो आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। तो अब एडवांटेज क्या है, मतलब क्यों लेंगे आप डेरिवेटिव्स। पहली बात तो हेजिंग टू रिस्क एक्सपोजर। अब यहाँ पर ऑप्शन आप ज्यादा खरीदोगे, रिस्क में ना जाओ इसलिए, मतलब आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो इसलिए आपने गोल्ड का ऑप्शन ले लिया। ओके, प्रीमियम दे दिया। पर अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो आपने क्या कर दिया, ऑप्शन छोड़ दिया कि भाई चलो पूरा 100% जाने से अच्छा है 10% चला जाए। ठीक है, तो ये रिस्क कम करने के लिए भी आप कर सकते हैं, या फिर अंडरलाइंग एसेट प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, कि बहुत बार अगर आपको किसी ट्रेंड मालूम करना है किसी कमोडिटी का, तो आप उसके ऑप्शंस के सेट को देखो। ऑप्शन या फ्यूचर्स के, अगर आप उसके मैच्योरिटी पीरियड के लाइन से वो मिल जाता है एनएस पे आपको, अगर आप उसके प्राइस की रेंज देखोगे तो आप पाओगे कि ये ट्रेंड रहेगा आगे जाकर। ठीक है, तो ट्रेंड ट्रेंड सेट करने के लिए या ट्रेंड को मालूम करने के लिए भी प्राइस के ट्रेंड को आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद एक्सेस टू अनअवेलेबल एसेट्स एंड मार्केट्स। जैसा मैंने कहा था, आपने शायद पिछली बार के लेक्चर में एक बार मैंने बताया था कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी डेरिवेटिव टाइप हो सकता है, क्योंकि डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होते हैं वो किसी और देश के इक्विटी से लिंक होते हैं। मतलब अगर आप वहां अकाउंट नहीं खोल सकते, आप यहाँ के बैंक का डीआर ले लो जो लिंक है वहां की इक्विटी से। ठीक है, तो जहां पर आपको एक्सेस नहीं है वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए भी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स, डीआर एडीआर जैसे चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और मार्केट एफिशिएंसी भी, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव्स की प्राइस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि वो डिराइव की जाती है, मतलब डेराव मतलब क्या, कम की जाती है। डेरिवेटिव्स आपने अगर पढ़ा होगा मैथ में कहीं 11 12 में साइंस में, तो आपको ये पता होगा डेरिवेटिव्स में वैल्यूज कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में बढ़ जाती है। तो डेरिवेटिव डिराइव की गई मतलब कम की गई है प्राइस डेरिवेटिव की। तो इससे मार्केट इफिशिएंसी बढ़ेगी, लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे। ओके, इफ यू आर 5 5 लाख
क्रूड ऑयल का लॉट आप अगर 50,000 में ट्रेड कर सकते हो तो करेंगे ही, आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये भी बढ़ने के लिए काम आता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, अब बेनिफिट तो दे गए। पहला तो हाई रिस्क, क्योंकि देखो ये हाई वोलेटाइल मार्केट होता है डेरिवेटिव्स का। आप एक बार, मैं तो सलाह दूंगा, एक बार चेक करो ही। ठीक है, एनएससी या फिर investing.com पे जाओ, डेरिवेटिव्स कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करो और उसका आप स्टडी करो पहले से, सालों से। आपको दिखेगा कि बहुत हाई वोलेटिलिटी पे चलता है डेरिवेटिव्स। ठीक है, जितना फायदा होता है उतना रिस्क भी है उसमें, लॉसेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि भाई चलो चलो हमने अच्छा किया इसमें, आप कर सकते हो, तो थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा। इसके बाद स्पेक्युलेटिव फ्यूचर कि जैसे मैंने कहा कि इसको हम स्पेकुलेशन के तौर पर, मतलब आगे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, एज स्पेकुलेशन हम इसको स्टडी करते, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, बट इट्स रिस्की इन नेचर, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल भी है। ओके, ये जिस आप खुद से उसको स्पेक्युलेटिव फीचर बना के आप तय करते हो, आप यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट प्राइस इज गोइंग टू अप एंड डाउन, so it's a kind of risky nature, extremely risky. And then counterparty risk is also there, means the counterparty means who is opposite to you, who is the seller. So if he is not going to give you what you want, or he is going to back out, okay, he is going to back out. This is mainly can happen in the forward contract and swap contract. Okay, because these both contracts are over the counter. It take place in office, not on the exchange. Okay, so that's the risky one. If the counterparty decided, or they refuses to trade, or give you delivery of the product, so you have that counterparty risk as well. Okay, so here are some of the advantages and disadvantages for the I can say derivatives. So here you can see the value of underlying means value of the derivative. Yeah, that's we see in our first definition, that value of underlying asset is equal to value of a derivative. Okay, so just take example, if I buy a crude oil derivative, so the derivative contract of crude oil is going to change when the price of crude oil is going to change. Okay, so they are linked. Okay, based on the underlying assets. So make this clear in your head, that what is this derivative and how the price of the derivative is going to change. Okay, so that's the all for the derivatives and derivative types, and what are the advantages and disadvantages for the derivatives. So I think that's for the today's securities of the derivative session. And the next securities we are going to study about the alternative investments,